وہ تیزی سے یونیورسٹی کے کوریڈور میں بھاگتے ہوئے کلاس کے باہر پہنچی کہ سر ارم کو کلاس میں کھڑا پا کر اس نے اپنے پیروں کو بریک لگائی۔ سر ارم نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ مس سمائزہ، آپ لیٹ ہیں؟ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں آپ کے لیٹ آنے کی؟ سر، میرے والد کے دوست کے پالتو کتے کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے لیٹ ہو گئی، وہ ڈرامائی انداز میں کہتی چہرہ جھکا گئی، جبکہ پوری کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجنے لگی۔ ارم افریدی نے غصے سے مٹھی بھینچی۔ اس چھوٹی مگر مغرور لڑکے کو گھورا جو یقیناً کسی بگڑی باپ کی اولاد تھی، پر مقابل لڑکی نہیں جانتی تھی سامنے کھڑا پروفیسر ارم افریدی کوئی معمولی ٹیچر نہیں تھا، بلکہ دی مافیا کنگ ایک کے تھا جو کسی خاص مقصد کے تحت پروفیسر بن کر کالج میں آیا تھا۔ سٹ! ارم کہتے پلٹا تھا، پر اگلے لمحے غصے سے جبڑے تن گئے تھے جب اس شرارتی لڑکی نے اس کے آگے چنے بڑھائے تھے۔ سر، کتے کی میت کے چنے! کلاس سے باہر نکلنا ہے مس سمائزہ؟ ارم نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری سر۔ امائزہ منہ بنا کر سوری کہتے ہوئے جگہ پر بیٹھ گئی۔ ارم نے غصے سے اسے گھورا۔ کلاس لے کر وہ اپنے آفس میں آیا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ سر، یونیورسٹی کا چیئر پرسن کل آ رہا ہے، مقابل کی آواز گونجی۔ گڈ! جتنی جلدی یہ کام ہو جائے اتنا اچھا، ارم نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ امائزہ یوں اپنے عالی شان بنگلے میں داخل ہوئی۔ صابرہ! امائزہ نے اپنی ملازمہ کو آواز لگائی۔ جی میڈم؟ گھر میں کوئی دکھ نہیں رہا، سب کہاں ہیں؟ جی، وہ صاحب آفس گئے ہیں اور میڈم پارٹی میں گئی ہیں، کہہ گئی ہیں کہ رات تک آ جائیں گی۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ امائزہ منہ بنا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امائزہ یوسف اپنے ماں باپ کی اگلوتی اولاد، جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے محبت اور توجہ کے۔ اس کے ماں باپ نے اسے ہر چیز فراہم کی تھی، اپنی توجہ اور محبت کے، جو کہ وہ اپنے ماں باپ سے چاہتی تھی، بلکہ ہر بچہ اپنے ماں باپ سے چاہتا ہے، اور بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو اکیلا ہی محسوس کرتی تھی۔ میڈم کھانا کھائیں گی؟ صابرہ نے کمرے میں آ کر پوچھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ جائیں یہاں سے، امائزہ نے بدتمیزی اور غصے سے کہا۔ اس پر صابرہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ ارے آئیے مسٹر ارہم، کیسی چل رہی ہیں کلاسز؟ چیئر پرسن نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ بہت اچھی جا رہی ہیں، مجھے آپ کا کب سے انتظار تھا، چیئر پرسن نے خوشگوار انداز میں کہا۔ آخر تمہارا وقت آ گیا ہے کہ تم اوپر جا کر اپنے کیے کا حساب چکتاؤ۔ ارہم نے اسے نکال مارتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں۔ چیئر پرسن گڑگڑایا۔ انسان کو اپنے گناہ کہاں نظر آتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے آپ کو فرشتہ ہی سمجھتا ہے۔ مقابل نے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر سلنسر شدہ گن اس کی کن پٹی پر کر دبا دی۔ سر، میں اندر آ جاؤں؟ امائزہ نے آفس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ گیٹ آؤٹ! وہ غصے سے دھاڑا۔ اگر امائزہ دیکھ لیتی کہ اندر چیئر پرسن مر گیا تو سب تباہ ہو جاتا۔ امائزہ ڈر کر وہاں سے چلی گئی۔ پاگل لڑکی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں اسے نہیں پہنچنا چاہیے، ارہم غصے سے بڑبڑایا۔ چیئر پرسن کے قتل پر پوری یونیورسٹی میں تفتیش ہو گئی۔ ارہم نے 2 دن کی لیو لے لی، اور اب جب وہ 2 دن بعد آیا اور کلاس میں داخل ہوا تو امائزہ کو دیکھ کر اس کا موڈ سخت بگڑا۔ ارہم لیکچر دے رہا تھا کہ اس کی نظر سوتی ہوئی امائزہ پر پڑی۔ اس لڑکے کا دھیان پڑھائی کے علاوہ ہر فضول چیز میں تھا۔ ابھی تو اسے اس دن والی بات پر بھی امائزہ پر غصہ تھا، اگر وہ دیکھ لیتی تو سب گڑبڑ ہو جاتا۔ مس امائزہ ارہم کے بار بار مخاطب کرنے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوئی تو اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے امائزہ کو ہلایا، جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا؟ امائزہ ایک دم اٹھی چلائی۔ کچھ نہیں مس امائزہ، بس صبح ہو گئی ہے جس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، یا پھر شاید آپ کی صبح بھی نہیں ہوئی۔ پوری کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجی، جبکہ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ رات دیر تک اپنی ماں کا انتظار کرتی رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ دیر سے سوئی، مگر اس کے ماں باپ اپنی زندگی میں مگن تھے اور انہیں اپنی بیٹی کی پرواہ نہیں تھی۔ مس امائزہ، بتائیں کہ میں نے کیا پڑھایا؟ ارہم اسے اشارہ کر کے بولا۔ امائزہ گڑبڑا کر اٹھی۔ سر، وہ مجھے نہیں معلوم۔ امائزہ نے نظر چکا کر کہا۔ ظاہر ہے آپ کا دھیان اپنی پڑھائی کے علاوہ ہر دوسری فضول شے پر ہوگا، تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے کیا پڑھایا؟ آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ نے سیمسٹر میں پاس ہونا ہے کہ نہیں؟ ارہم غصے سے اسے دیکھ کر بولا۔ جی سر، امائزہ دبی آواز میں بولی۔ لیکن آپ کے آثار دیکھ کر تو نہیں لگ رہا کہ آپ کا پاس ہونے کا کوئی ارادہ ہے۔ اٹھے وہاں سے اور پہلی سیٹ پر آ کر بیٹھے میرے سامنے۔ اب غور سے سنیے گا کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں۔ لیکچر دینے کے بعد ارہم نے سب کو اسائنمنٹ کے ٹاپکس دیے اور 2 دن کا ٹائم دیا۔ مس امائزہ، سب سے پہلے میں آپ کی اسائنمنٹ چیک کروں گا، اس لیے خبردار جو آپ نے 2 دن کے بعد چھٹی کی تو۔ ارہم نے امائزہ کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ جی سر، امائزہ نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ گڈ! ارہم اسے کہہ کر کلاس سے باہر نکل گیا۔ کیا مسئلہ ہے سر کو؟ ہر بات پہ میرے ابا بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنی فکر تو میرے ماں باپ کو نہیں ہے جتنی ان کو میری ہے، امائزہ غصے سے کہتی پیر پٹک کر کلاس سے نکل گئی۔ کیسے ہو ارسلان؟ امائزہ نے اپنی دانت کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ ارسلان، تم جانتے ہو نا میرے پیارے دوست، سر ارہم نے مجھے اسائنمنٹ دی ہے، امائزہ نے اداسی لیے ہوئے کہا۔
तो सबको ही दी है, तुम कोई अनोखी तो नहीं हो, तो तुम्हारी एक मदद चाहिए। कैसी मदद? अरसलान ने सवाल किया। वो यार, मैं कल असाइनमेंट का टॉपिक देखा था मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। अमायज़ा, वो टॉपिक सर ने क्लास में पढ़ाया भी था, अगर तुम अपने नोट्स देखोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि इस टॉपिक में क्या है। अरसलान ने चिढ़कर कहा। हाँ, लेकिन मुझे नहीं आई ना समझ। अब वो कैसे बताती कि उसने तो लेक्चर नोट ही नहीं किया था। वो अरसलान में कह रही थी, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो थोड़ी सी, बस थोड़ी सी। अमायज़ा ने आंखों में उम्मीद लिए पूछा। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। थोड़ी सी मदद के चक्कर में तुम सारी असाइनमेंट मुझसे ही बनवाओगी। अरसलान ने साफ चिट्टा इनकार किया। अरसलान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो सबकी मदद करते हो, क्लास के टॉप पे रहो, ज़रा सी मेरी मदद करोगे तो क्या हो जाएगा? अमायज़ा ने एहतिजाजन कहा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर देता अगर ये किसी और सर की असाइनमेंट होती तो, मगर तुम्हें सर आरम का पता है कि वो कितने गुस्से के थे। अगर उन्हें ज़रा सा भी पता चला कि यह असाइनमेंट तुमने नहीं बल्कि मैंने बनाई है, ये किसी और से बनवाई है, तो तुम खुद तो बच जाओगे लेकिन मुझे सस्पेंड करवाओगे। अरसलान ने अपनी ऐनक ठीक करते हुए कहा। अरसलान, कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मैं वादा करती हूँ तुम्हारा नाम नहीं लूँगी, पक्का इसके बदले में तुम्हें पैसे भी दूंगी जितने तुम कहो। माइज़ा ने उसे लालच देते हुए कहा, जिस पर वो सोच कर रह गया। ठीक है, लाओ दो, अपना टॉपिक मैं बना दूंगा, और हाँ, कल यूनिवर्सिटी जल्दी आकर सर के लेक्चर से पहले ले जाना। अरसलान ने उसे समझाते हुए कहा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अरसलान, मैं तुम्हारा ये फेवर कभी नहीं भूलूंगी। माइज़ा खुश होकर वहाँ से चली गई कि असाइनमेंट करने की जिम्मेदारी अब उसके सर से तो उतरी। जी क्लास, जैसा कि मैंने आप सबको असाइनमेंट दी थी, तो मिस अमाइज़ा, आपकी असाइनमेंट कहाँ है? यकीनन आपने अपनी असाइनमेंट की होगी। अरहम ने अमाइज़ा को तंज नज़रों से देखा। जी सर, मैंने की है। अमाइज़ा पूरे एतमाद के साथ खड़ी हुई और अरहम को जाकर अपनी असाइनमेंट पकड़ाई। इम्प्रेसिव। अरहम ने उसकी हौसला अफजाई की। उसे यकीन नहीं था कि ये लड़की असाइनमेंट कर भी लेगी। बहुत अच्छे मिस अमाइज़ा, आपने बहुत अच्छी असाइनमेंट लिखी है। क्या आप क्लास को बता सकती हैं कि आपने असाइनमेंट के लिए कौन सी किताबें इस्तेमाल की हैं? अरहम ने माइज़ा से संजीदगी से पूछा, जिस पर अमाइज़ा गड़बड़ा गई। वो सर, लाइब्रेरी से मैंने बुक्स ली थी और उन्हीं से लिखा है। क्या नाम था? अमाइज़ा सोचने की अदाकारी करने लगी। ये असाइनमेंट मैंने आपको दी थी ना कि अरसलान को। कितने पैसे दिए आपने अरसलान को अपनी असाइनमेंट लिखने के लिए? और हमने सख्त नज़रों से अमाइज़ा को देखते हुए पूछा, जिस पर अमाइज़ा हैरत में पड़ गई। सर, ये असाइनमेंट मैंने खुद लिखी है, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, मैंने खुद ये मेहनत से लिखी है। क्यों अरसलान, बताओ ज़रा सर को। अमाइज़ा ने साफ झूठ बोलते हुए कहा, जिस पर अरसलान भी उसकी अदाकारी पर हैरान था। जी सर, ये असाइनमेंट अमाइज़ा ने बनाई है, मैंने इसकी मदद नहीं की। अरसलान ने अरम को देखते हुए कहा। आप लोगों ने मुझे पागल समझा हुआ है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए टीचर से झूठ बोलते हुए। और हमने फ़ोन पर रिकॉर्डिंग चलाई जिस पर अमाइज़ा अरसलान को पैसे देने की और असाइनमेंट लिखने की बात कर रही थी, जिस पर अमाइज़ा ने सख्ती से आंखें मीची। उसे अंदाज़ा नहीं था कि कोई उसकी वीडियो बना लेगा। यकीनन ये किसी क्लास के ही करिंदे की हरकत थी और इस वक्त वो गुस्से से आग बगोला हो रही थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बकौल आपने तो ये असाइनमेंट अपनी मेहनत से लिखी है, तो यहाँ पर अरसलान को कौन से पैसे देने की बात कर रही थी? अरसलान ने तंज से अमाइज़ा की तरफ देखा। सॉरी सर, अमाइज़ा ने नज़रें नीचे करते हुए कहा। पूरी क्लास के सामने बेइज्जती पर उसका दिल चाहा कि अपना सर दीवार में मार दे। मिस अबाइज़ा, आप नहायत ही गैर जिम्मेदार, बेईमान, झूठी लड़की है। क्या तालीम आपको ये सब सिखा रही है? बेईमानी करना सज़ा है। आपको ये नए टॉपिक पर असाइनमेंट कल सुबह जमा करवानी है। अरम बाकी बच्चों की असाइनमेंट कलेक्ट करता क्लास से निकल गया। अरम सर, अगले टारगेट का क्या करना है? मुकाबिल ने अरम से सवाल किया। अभी नहीं, पुलिस अभी भी चेयरपर्सन वाले मामले पर तफ्तीश कर रही है, मामला थोड़ा ठंडा होने दो, इसके बाद उसकी तरफ भी आएंगे। अरम ने कहते कॉल काट दी। तभी दरवाज़ा नाक हुआ। आ जाए। अरम ने इजाज़त दी और सामने अमाइज़ा को देखकर अरम का हलक तक कड़वा हो गया। क्या है मिस अमाइज़ा? अरम ने बेजारी से कहा। वो सर, मैं असाइनमेंट का टॉपिक पूछने आई थी। अमाइज़ा ने आंखें नीचे करते हुए शर्मिंदगी के साथ कहा। ग्रुप में मैंने टेक्स्ट कर दिया है, आप जा सकती हैं, और हाँ, इस पर अपनी मेहनत से करिएगा, न कि किसी और को पैसे देकर। अरम ने तंज करते हुए कहा, जिस पर अमाइज़ा सर हिलाकर निकल गई। अमाइज़ा, तुम अभी तक जाग रही हो? शहला बेगम ने घर में दाखिल होते हुए लाउंज में बैठी माइज़ा से पूछा। जी, मेरे सर की मेहरबानी है कि उनकी वजह से मैं आज आपको देख पाई। माइज़ा गुस्से से कहती अपना लैपटॉप उठाकर कमरे में चली गई। शहला बेगम भी न खुद से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रात देर तक माइज़ा ने असाइनमेंट बनाई। अब उसका नींद से बुरा हाल था। वो अरम को असाइनमेंट देकर घर जाके सोने का इरादा रखती थी। अरम अपने ऑफिस के कमरे में था कि माइज़ा दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। सर, ये असाइनमेंट ले ले। अरहम ने उससे असाइनमेंट ली और देखने लगा। मिस समाइज़ा, इसमें बहुत गलतियाँ, मगर अपना काम खुद करके और मेहनत करके कैसा लग रहा है? अरहम ने उससे सवाल किया। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अमाइज़ा ने दांत पीसते हुए कहा। गुड, जा सकती हैं आप। अमाइज़ा पैर पटक कर चली गई। खड़ूस इंसान, मैंने रात चाहकर असाइनमेंट बनाई और कहता है मिस समाइज़ा इसमें गलतियाँ बहुत हैं।
आया, बड़ा समझता क्या है खुद को, बदतमीज़, 2 लफ्ज़ तारीफ़ की नहीं बोल सकता था। मिस समाइज़ा वो उसकी तारीफ़ कर रही थी कि अरम की आवाज़ पर पलटी। जी सर, आपका फ़ोन ऑफ़िस में रह गया था। अरम ने उसे फ़ोन पकड़ाते हुए कहा, जी, जी, जी सर लिया। माइज़ा ने घबराते हुए कहा, और मेरी तारीफ़ें मेरे मुँह पर किया करें। अरहम नागवारी से उसे देखता वापस ऑफ़िस की तरफ मुड़ गया। हाय मज़ा, ये तेरी कैंची जैसी ज़बान को आराम क्यों नहीं है? सर ने सब सुन लिया, अब क्या करूँ? क्या जाकर माफ़ी माँगूँ? नहीं, अभी माँगी तो शायद ज़्यादा गुस्सा करे, बाद में माँग लूँगी। माइज़ा परेशानी में अपने बाल नोच के आगे बढ़ गई। कुछ दिन बाद अरम अपने लिए नाश्ता बना रहा था जब उसका फ़ोन बजा। जी सर, क्या हुक्म है? मुकाबिल ने अरम से सवाल किया। हाँ, वो मामूल की तरह क्लब जाएगा, हम वहीं पर उसे घेर लेंगे, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है? अरम ने कहते हुए कॉल काट दी। अरम और उसके बंदे जैसे ही क्लब दाखिल हुए, हर तरफ गाना और शोर शराबा। लोग एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर नाच रहे थे और नशे में डूबे हुए थे कि अरहम ने अपने साथी को इशारा किया और लाइट चली गई। अरहम ने फ़ौरन अपने टारगेट को बेहोश किया और उसे कमरे की तरफ ले गया। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, अमाइज़ा चीखते हुए बोली। वो अपने दोस्त के साथ क्लब में आई थी, मगर किसी ने उसके गिलास में नशे की दवा डाल दी और उसे एक आदमी ज़बरदस्ती कमरे में ले आया। जैसे ही अरम दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, अमाइज़ा को किसी के साथ देखकर उसने ज़बत से आंखें बंद की। वो जहाँ जाता था ये लड़की वहाँ पहुँच जाती थी। सर सर प्लीज़ मेरी मदद करें, अरम सर प्लीज़। अमाइज़ा ने चीखते हुए कहा, बकवास बंद करो, खबरदार मेरा नाम लिया तो। अरम ने उसे दबी आवाज़ में कहा और उस आदमी को दे मारकर कमरे से निकाला। खबरदार जो बकवास की तो चुप करके बैठो यहाँ पर। अरब ने उसे एक सोफे पर कोने की तरफ बढ़ने का इशारा किया। वो चुपचाप वहाँ जाकर बैठ गई। अरब ने बेहोश आदमी को लिटाया और उसकी कनपट्टी पर गोली मार कर उसे खुदकुशी का मंजर देने की कोशिश की। इस पर माइज़ा ने अपनी सिसके मुंह पर हाथ रखकर रोकी। गोली को वहीं बिस्तर पर छोड़कर वो माइज़ा की तरफ बढ़ा। सर, ये आपने क्या किया? माइज़ा ने रोते हुए उससे पूछा। एकदम चुप, खबरदार यदि आवाज़ निकली तो। हाँ, मैं आ रहा हूँ बाहर। अरब ने ज़ोर से माइज़ा का बाजू थामा और उसे अपने साथ घसीटते हुए गया। सर जी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? माइज़ा जो दवाई की वजह से नशे में भी थी, लड़खड़ाते लहजे में बोली। सर, आप इतने प्यारे हैं, कोई लड़की नहीं मिली अभी तक आपको? माइज़ा और फुल बोले जा रही थी। अरब ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे अपने साथ घसीटता रहा। माइज़ा को नशा व अद्वियात की वजह से कर भी आ रहे थे कि वो अरम की बाहों में झूल गई। डमट, पता नहीं कौन सी मुसीबत मेरे गले पड़ गई। अरम उसे बाहों में उठाए अपने अपार्टमेंट में लेकर आया और बेड पर लिटाकर बाहर निकल गया। सर, पुलिस क्लब पहुंच चुकी है और आज़र की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, मुकाबिल ने इतला देते हुए कहा। सुबह जब माइज़ा उठी तो उसका नशा उतर चुका था और अपने आप को एक अनजान जगह पर पाकर वो घबरा कर उठी। जी, मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? ये कौन सी जगह है? माइज़ा खुद से घबरा कर सवाल करने लगी और घबरा कर कमरे से बाहर निकली तो लाउंज में कोई नहीं था। कौन है? कोई है? कौन है यहाँ? सामने आओ, माइज़ा डरते हुए बोली, मगर जवाब न पाकर उसका दिल वहशतों में गिर गया और वो मेन डोर की तरफ भागी। मगर वो लाख था, अचानक मेन डोर का दरवाज़ा खुला और अरहम कुछ सामान के साथ अंदर दाखिल हुआ। आखिर उठ ही गई तुम? अरहम ने उसे देखते हुए कहा। सर, आप यहाँ कैसे? माइज़ा ने अरहम को देखकर सवाल किया। ये मेरी ही अपार्टमेंट है जहाँ आप खड़ी हैं, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो रात को क्लब गई थी, माइज़ा ने जहन पर जोर डालते हुए सोचा और एकदम से अरहम को देखकर उसके चेहरे का रंग बदला। आपने वहाँ पे किसी का कत्ल किया था? हाँ, आप मुझे भी मार देंगे, माइज़ा कहते हुए अंदर कमरे की तरफ भागने लगी कि अरहम ने उसका बाजू ज़ोर पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया। खबरदार जो फजूल गोई की तो, अगर तुमने ये बात किसी और के सामने की तो वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अरहम ने उसे तंबीह करते हुए कहा, आप मुझे ऐसे डरा नहीं सकते, मैं सबको बता दूंगी, मैं पुलिस को बता दूंगी कि आपने एक शख्स का किया है। माइज़ा रोते हुए बोली, वो इसी लायक था और तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि मैंने सिर्फ एक ही कत्ल किया है? अरहम कहकर लगा बोला, जबकि माइज़ा के लिए अरहम का ये रूप बहुत अलग और बहुत ख़तरनाक था। यूनिवर्सिटी में जिस तरह का सोबर इंसान दिखता था वो वैसा तो था। ये इंसान, ये शख्स जो उसके सामने खड़ा था, ये तो कोई और ही था, जिससे माइज़ा को बहुत डर लग रहा था। अच्छा, आप मुझे जाने दें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, माइज़ा ने उसके तासरात देखकर आवाज़ में कहा, जिस पर अरहम ने उसे तिरछी निगाहों से देखा। हाँ, जैसे तुम्हारी बात पर मैं यकीन कर लूँगा। इतना शक्ल से बेवकूफ़ लगता हूँ क्या? तुम यहीं रहोगी जब तक कि आज़र वाला मामला ख़त्म नहीं हो जाता। अचानक अरहम का फ़ोन बजा। सुनो, क्लब की फ़ोन में से माइज़ा की फ़ुटेज भी डिलीट कर दो, मिटा दो कि वो यहाँ पर आई थी। अरहम ने कहते हुए फ़ोन काट दिया। आपको मेरी इज़्ज़त की परवाह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे पेरेंट्स को अगर पता भी लग गया कि मैं क्लब गई थी तो उन्हें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमाइज़ा ने उदासी से कहा। अमाइज़ा, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम्हारी फ़ोटेज सिर्फ इसलिए मिटाई है ताकि पुलिस तुम्हें तफ्तीश में शामिल ना करे, क्योंकि अब तुम यहाँ से तो बाहर नहीं निकल सकती। हमने अमाइज़ा को आईब्रो उचकाकर कहा, देखिए सर, मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊँगी, प्लीज़ मुझे जाने दें।
अमाइज़ा ने उसे देखकर मासूमियत भरे लहजे में कहा, नाश्ता कर लो आकर। अरहम ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं नहीं खाऊंगी, अब बस मुझे यहाँ आने दे। अमाइज़ा चीखते हुए बोली, नहीं खाना तो ना खाओ, मगर ये सोच लो अगला खाना रात को ही मिलेगा। सारा दिन भूखे रहना है तो तुम्हारी मर्जी। अरहम ने कहते हुए नाश्ता करना शुरू किया। अमाइज़ा भी मुंह बना कर गई, क्योंकि भूख तो उसे भी बहुत लग रही थी। अचानक खाना खाते हुए उसने शीशा छोड़ा। मेरी बुआ तो इससे ज़्यादा मज़े के पराठे बनाती है, इतने सख्त नान मैं नहीं खाती। माइज़ा ने नान चनों को देख कर कहा, इससे माइज़ा आप इस वक्त मेरी कैद में है, किसी रेस्टोरेंट में नहीं, जो आप इस तरह की फरमाइशें कर रही हैं। खाना है तो खाएं, नहीं तो चुप करके कमरे में चले जाएं। अरब ने उसको तेज़ नज़र से घूरते हुए कहा, जिस माइज़ा चुपचाप खाना खाने लगी। चलिए, अब आपने खाना खा लिया है तो अपने कमरे में चली जाएं। खाना खाने के बाद अरहम ने बर्तन समेटते हुए कहा, मैं नाश्ते के बाद चाय भी पीती हूँ। अमाइज़ा ने मज़े से कहा, जिस पर अरहम ने ज़बत से अपनी आंखें मींची। अमाइज़ा, क्या आप अपना फशी प्रोग्राम बंद कर सकती हैं? मेरे पास बहुत से काम है करने को, और अगर चाय पीनी है तो खुद बना लीजिए। अरहम ने गुस्से से कहा, मगर मुझे तो चाय आती ही नहीं है, प्लीज़ बना दें, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। माइज़ा ने अरहम को उम्मीद से देखते हुए कहा, वाह खुदा, आपको देखकर यही लगा आपको सिर्फ बातें बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। अरहम कल कर कहा। अमाइज़ा मुंह बनाकर रह गई। ने चाय बनाने के लिए सास पेन निकाला। उसे देखकर अमाइज़ा अरहम को हिदायत दे बोली, सर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सी, मैं दूध वाली नहीं पीती, थोड़ी स्ट्रॉन्ग और गाढ़ी हो। अमाइज़ा अरहम के सब्र का इम्तहान ले रही। अरहम ने अपना ज़बत खोया और फ़ौरन उसको जाके बाजू से अपने करीब करके धाड़ा। मिस अमाइज़ा, चुपचाप जैसी चाय बने वैसी पी लीजिएगा, मुझे नखरे दिखाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर अमाइज़ा डर कर चुपचाप कोने में बैठ गई और नाते हुए देखने लगी। अमाइज़ा ने चाय का पहला घूंट लिया तो बोली, चाय थोड़ी फीकी, मगर अरहम के सर तासरात देख बहुत बहुत अच्छी है, चाय बहुत अच्छी है, मैंने तो कभी पहले पी नहीं। अमाइज़ा ने अपने दांत करते हुए कहा, जिस पर अरहम आंखें घुमाकर रह गया। कर अमाइज़ा अपने कमरे में अरहम अपनी स्टडी में आ गया। हाँ मोइज़, क्या खबर है? अरहम ने फ़ोन पर मोइज़ को मुखातिब किया। सर, आज़र की केस की तफ्तीश जारी है, मगर पुलिस ने उस असर रसूख को देखकर क्लब की बजाय घर का नाम लिया है। अगर उसकी लाश घर पर मिली थी, मोइज़ ने बताया, इन 2 टके के लोगों को, जिनको दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं होती, अपनी नाम निहाद इज्जत को बचाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। खैर, तुमने अमाइज़ा की फ्लीट करवा दी थी? जी सर, वो मैंने करवा दी। गुड। ऐसे लोगों का होता है जब अपने आप को ज़मीनी खुदा समझ बैठते हैं। ठीक है, मुझे अपने रहना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, खुदा। अरहम की नज़र अमाइज़ा पर पड़ी के दरवाजे से कान लगाकर उस सुन रही थी, जिस पर अरहम ने फ़ौरन कॉल मुनक़ता की और स्टडी का दरवाज़ा खोला और अमाइज़ा एक तवाज़ुन खोकर अंदर की तरफ गिरी। वो मैं यहाँ से ही थी, अमाइज़ा ने लड़खड़ाते हुए कहा। गुजर रही थी कान लगाकर। वो सर, मैं कहने आई थी कि फ़ाइनल अगर यूनिवर्सिटी ना गई तो मुझे पेपर्स में बैठने नहीं देंगे, प्लीज़ छोड़ दे, मुझे जाने दे। अमाइज़ा ने उसकी मिन्नत करते हुए कहा, कैसे ही रहे ऐसे रही हो जैसे टॉप तुमने ही करना है, साथ कुछ पढ़ा नहीं है, अगर नहीं जाओगे तो कुछ दिनों से कुछ नहीं हो। सर, आपने भी तो यूनिवर्सिटी बना ना, तो मैं आते ही चली जाऊंगी, आप मुझ पर नज़र भी रख लेना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अमाइज़ा ने अपनी तरफ हुए कहा, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ चुका हूँ। अरहम ने उसकी बात के जवाब में कहा, क्यों, कहीं आपने वहाँ किसी को मार नहीं दिया? अमाइज़ा ने उसे शकी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम मुझे कह रही हो कि तुम किसी को जाओगी नहीं, मगर यहाँ मेरे सामने तुम्हारे मुंह से ये बकवास बंद नहीं हो रही, इसी वजह से मैं तुम्हें भेज नहीं रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी तकलीफ़ होगी जो कहीं भी रुकती नहीं है। अब जाओ यहाँ से, अपने कमरे में खबर जासूसी की तो, और ख़बरदार जो मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की और मुझ पर नज़र रखने की कोशिश की तो बहुत बुरा हशर करूँगा तुम्हारा। ने उसे तहश ज़दा नज़रों से देखते हुए कहा, जिस पर अमाइज़ा डर गई और अपने कमरे की, वैसे आपने मेरे घर वालों को क्या कहा है कि मैं कहाँ पर हूँ? फिर से नमूदार होते हुए उसके सामने आकर बोली। आयज़ा, मेरे सब्र का इम्तहान मत लो और जाओ यहाँ से। तुम्हारे घर वालों को मैंने तुम्हारे मैसेज कर दिया था कि तुम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गई हो, अब जाओ यहाँ से। हमने उस पर चिल्लाते हुए कहा, जा रही हूँ, वैसे मेरा फ़ोन तो दे दीजिए, गेम खेलो कोई। अमाइज़ा ने उसे तंग करते हुए कहा, मगर उसकी नज़र की सुर्खी को देखकर अपना मुंह बंद करो से जाने में ही उसने आफियत समझी। कुछ दिनों बाद जब मामला ठंडा हुआ तो अरहम को कॉल की, क्या हालात हैं? अरहम ने उससे पूछा, जी सर, पुलिस कोशिश की, मगर मैं उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, और आज़र की मौत को खुदकुशी और डिप्रेशन का ज़राया गया, और पुलिस ये पर पहुंचकर केस क्लोज कर दिया।
मोइज़ ने अरहम को इतला देते हुए कहा, गुड। चाहते थे वैसे ही हुआ। अरहम उर्फ बेस्ट इतना डर बैठा लोगों के दिल में कि अब किसी के साथ ज्यादती और नाइंसाफ़ी पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि बेस्ट माफ़ नहीं। अरहम अमाइज़ा के कमरे में दाखिल हुआ तो वो बाथरूम से निकली, धोकर निकली थी। उसके अभी भी पानी की बूंदें थी जो उसके नकुश को बहुत हसीन बना। एक पल हम भी उनमें खो गए। संभलते हुए उसने अपनी नज़रें फेर ली। आप खैरियत? माइज़ा ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ। सच्ची? कहाँ से निकल गया? माइज़ा ने खुश होते हुए कहा, जहाँ से भी निकला हो, मगर तुम एक बात समझ लो, वो केस बंद हो चुका है। लेकिन अपनी ज़बान को ज़रा सी भी तकलीफ़ दी या किसी के साथ कही तो तुम जानती हो तुम्हारी जान लेने में मुझे से भी तकलीफ़ नहीं होगी। बाहर तुम्हारा गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें अरहम बाहर निकल गया, तुम्हारी जान लेने में तकलीफ़ नहीं होगी। इतने बंदे मार चुके हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके एहसासात ही नहीं, एहसासात से आरी बंदा। अमाइज़ा चिढ़कर इसके पीछे चलता। अब तो पेपर भी गुजर चुके होंगे, मैं क्या करूँगी? अमाइज़ा अरहम को देखते हुए कहा, दोबारा सेमेस्टर रिपीट कर लेना, तुम्हारे लिए कौन सी नहीं। अरहम ने तंज से उसको देखते हुए कहा, सर अब मैं इतनी निकम्मी हूँ, बस आपका सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल था। बाकी अरहम ने अमाइज़ा की बात को खातर में ना लाते हुए कहा, बहुत अच्छी हो, तभी तो उनके पेपर में चीटिंग करते हुए पकड़ी गई थी। सर आपको तो हर बात का पता है, मुंह बनाकर कहा। और उसके बाद जब तक वो घर नहीं पहुंची उसने कोई भी गोहर अफशानी करने से अपने आप रखा, क्योंकि वो जानती कि अरहम उसकी बेइज्जती कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे। जैसे ही गाड़ी अमाइज़ा के घर पहुंची, अमाइज़ा और अरहम घर के सामने खड़े हुए। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, अब आपको तंग नहीं करूँगी, मैंने हंसते हुए कहा, जिस पर अरहम हल्का सा मुस्कुराया। बात अमाइज़ा के लिए बड़ी थी कि अरहम मुस्कुराया। सर मेरा फ़ोन तो वापस कर दें, अरहम को देखते हुए कहा। अरहम ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला की तरफ बढ़ाया। अमाइज़ा ने अपना फ़ोन पकड़ा और अरहम की तरफ देखा। सर एक सेकंड, अपना फ़ोन दीजिएगा। अमाइज़ा ने उससे अपना नंबर उस पर डायल किया। ये फ़ोन की घंटी बजी। अरहम ने उसे झुका कर देखा। कभी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर लीजिएगा। अमाइज़ा हंसकर अपने घर के अंदर चली गई, जबकि अरहम भी बढ़ गया। ज़िंदगी में उम्मीद थी अमाइज़ा ने फिर से यूनिवर्सिटी जाना था और अब वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेती थी। यूनिवर्सिटी से घर आई तो गैर मुतवक्के तौर पर उसकी अम्मी आज घर पर मौजूद थी। अमाइज़ा आओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी मैं। शहला बेगम ने मुस्कुराकर अमाइज़ा को देखा। मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? वो हारिस आया है, हमारा इंतज़ार कर रहा था। अमाइज़ा ने देखा, जिसने मुस्कुराकर अमाइज़ा हुए हाथ हिलाया। हेलो अमाइज़ा, कैसी हो? हारिस ने हाथ बढ़ाया, जिसे अमाइज़ा ने थामा नहीं। अमाइज़ा हर कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगा, जब तक इसका घर नहीं बन जाता। हारिस शहला बेगम का बेटा था और वो पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था हाल में। तो ये आप सब बता रही हैं? अमाइज़ा ने शहला बेगम को देखकर नागवारी से कहा, बेटा हारिस तुम्हारे जितना है, तुम इसे कंपनी। शहला बेगम ने ज़बरदस्ती से मुस्कुरा कहा। हरकत पर उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर हारिस के सामने वो चुप। अमाइज़ा अपने कमरे में आई तो शहला उसके पीछे आ गई। अमाइज़ा, ये क्या बदतमीज़ी है? तुम्हें मालूम नहीं घर आए मेहमान को कैसे ट्रीट करते हैं? तुम्हारा रवैया हारिस कितना सर्द था, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? शहला बेगम ने अमाइज़ा को डांट कहा। मोम, मुझे किसी की परवाह नहीं, और आप ऐसे क्यों कह रही हैं जैसे आपको बहुत परवाह होगी? आप भी तो किसी की परवाह नहीं करती। अमाइज़ा ने मरते हुए कहा। शट अप अमाइज़ा, मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। हारिस इतना वेल स्टेल्ड, ऐसे लोगों से ताल्लुकात रखने हैं। उन्हें अमाइज़ा को देखते हुए कहा, पर अमाइज़ा हंस पड़ी। लोगों से ताल्लुकात के स्टेटस देखकर बनाती हैं। आपने हमेशा बस लोगों का पैसा ही देखा है। आपको और डैड को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। कभी आपने पूछा आपकी बेटी किस हाल में है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? अमाइज़ा ने आवाज़ में कहा, किस चीज़ की कमी है तुम्हें? हज तुम्हें दी है, अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, मगर फिर भी तुम्हारे शिकवे नहीं होते। शैला बेगम ने माइज़ा को देखकर सख्त नज़रों से कहा, आपको लगता है सिर्फ अच्छा खाना, अच्छे कपड़े फराहम करके आप लोग अपनी जिम्मेदारी से सबक दोष हो गए? क्या माँ बाप का औलाद की बैठकर 2 पल प्यार से बात करना, उनका पूछना फ़र्ज नहीं है? शट अप, क्या टिपिकल मिडिल क्लास वाली बातें कर रही हो? नहीं, किन लोगों में उठ बैठ रही हो? खुद से मिसबिहेव मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। शैला बेगम अमाइज़ा को डांटते हुए बाहर चली। खाने पर शैला बेगम, अशरफ साहब और हारिस खाना खा रहे थे कि साहब ने मुलाजमा से अमाइज़ा के बारे में पूछा।
جی انہوں نے کہا کہ انہیں بھوک نہیں، جس پر اشرف صاحب نے کو دیکھا۔ میں بلا کر لاتی ہوں اسے، بیگم اٹھتے ہوئے بولی اور مائزہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ تمیزی ہے مائزہ، ارے نیچے نیچے آؤ، آ کر کھانا کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ مائزہ نے شبنم کی طرف بنا دیکھے کہا، میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا تمہیں بھوک ہے کہ نہیں، نیچے آؤ، حارث اکیلا بیٹھا ہے، ایسے اچھا نہیں لگتا، مگر ایک لفظ نہیں، نیچے آؤ فوراً۔ مائزہ ان کے ساتھ ٹائل کی طرف بڑھ گئی۔ مائزہ تمہاری یونیورسٹی کیسی چل رہی ہے؟ اشرف صاحب نے مائزہ کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، مائزہ نے سے کہا۔ مائزہ اپنی پینٹنگز حارث کو دینا۔ کھانے کے بعد اشرف صاحب نے مائزہ کو کہا، نہیں میں پرسنل چیزیں کسی کو نہیں دکھاتی۔ مائزہ نے صاف انکار کر دیا، جس پر اشرف شیلا بیگم نے وہ مائزہ کی پھٹ طبیعت سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ کھانے کے بعد مائزہ اپنے کمرے میں بیٹھی اسائنمنٹ رہی تھی کہ حارث اس کے کمرے میں داخل۔ کیا کر رہی ہو مائزہ؟ حارث نے مائزہ سے پوچھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، آپ کو مینرز نہیں ہے کہ کسی کمرے میں نوک کر کے جاتے ہیں؟ ایسے منہ اٹھا کے کسی کے کمرے میں نہیں آ جاتا۔ مائزہ نے غصے سے دیکھا، جس پر حارث ہوا، سوری مجھے اندازہ تھا۔ اس نے شرمندہ لہجے ویسے کیا کر رہی ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ سائیکالوجی کی اسائنمنٹ بنا رہی ہوں۔ مائزہ اس کو دیکھتے ہوئے کہا، اوہ واو، مطلب تم لوگوں کے دماغ پڑھنا نہیں ہو۔ حارث نے مائزہ سے متاثر ہوتا، صرف دماغ نہیں بلکہ ان کی نیت بھی پڑھنا جانتی ہوں۔ مائزہ نے حارث کو تیز سے گھورتے ہوئے کہا، جس پر حارث نے پہلو بدلا، کافی بہت اچھی ہو، کیا میرے لیے کافی؟ حارث نے اس سے فرمائش کی۔ امی جان کی باتیں یاد کی مجبوراً کافی بنانے کے لیے کچن میں گئی۔ وہ جیسے ہی کافی کا ڈبہ پلٹی، حارث کو اس نے بالکل اپنے پیچھے پایا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ گھبرا ہی گئی۔ حارث آپ جا کر لاؤنج میں بیٹھو، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لوں۔ مائزہ نے حارث کو وہاں سے کے لیے کہا، نہیں میں تمہارے لیے کافی بناتے ہوئے آتا ہوں، کرتے ہوئے تم کتنی اچھی لگتی ہو۔ حارث نے مائزہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جس پر مائزہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ اپنی رہو۔ مائزہ نے حارث کو دھکا دیتے ہوئے کہا، مت بھولو کہ گھر میں کھڑے ہو، اپنی اوقات مت بھولو۔ مائزہ اسے دھکا دے کر فوراً اپنے کی طرف بھاگی، دروازے کر کے ایک آنسو گرا اور اس کے گال پر لڑکا۔ اس لڑکے سے آپ لوگ بحث ہوئے تھے موم ڈیڈ، جس کا نہ کردار ہے اور نہ اخلاق۔ ظاہر ہے جیسے آپ لوگوں کو لوگ پیسے والے، ویسے ہی آپ لوگوں کو حارث پسند آ، صرف اس کی دولت کی چوند نے آپ کو اندیا، جسے آپ اپنی بیٹی کے ساتھ گھر میں اکیلا چھوڑ گئے۔ مائزہ ناشتے کی چاہی تو شیلا بیگم اور اشرف صاحب کو ڈائنے پر ناشتہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حارث بھی وہاں پہ موجود تھا۔ کیا بات ہے موم ڈیڈ، کل آپ لوگ کافی گھر میں دکھ رہے ہیں، ورنہ میں تو آپ کی شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ کیا مائزہ اس کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا۔ ارحم اپنی اپارٹمنٹ داخل ہوا تو اسے ایک خاموشی سی محسوس ہوئی۔ یہ اپارٹمنٹ ہمیشہ سے ہی خاموش رہا تھا، مگر کچھ دن اس میں کسی کی نادان سی بات ہنسی کی گونج تھی جو اب نہیں تھی۔ مائزہ کا اس سے لڑائی کرنا، شرارتیں کرنا، وہ سب مس کرنا چاہنے، وہ اسے مس کر رہی ہوگی یا نہیں۔ جب سے گئی تھی ایک بار بھی اسے فون کیا تھا، پھر مجھے کیا میں بھی نہیں کروں گا اسے۔ ارحم نے کہا کال لاگ میں جب اس کا نمبر دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس نے مائزہ کا نمبر دونی بلی کے نام سے سیو کر دیا۔ ایک کے لیے ارحم کے چہرے پر کراہٹ آ گئی تھی۔ مائزہ کا ذکر ہوتا تھا، اس کے چہرے پر کراہٹ ایسے ہی آ گئی۔ نہ جانے وہ لڑکی ایسا کیا جادو کرتی تھی کہ وہ اس کی باتوں سے لطف اندوز ہوتا تھا، مگر اسے ظاہر نہیں کہا۔ میرے دل کی عادت لگا کر تم چلی گئی ہو، بار بھی پلٹ کر نہیں، بے وفا لڑکی۔ ارحم نے اسے خیالوں میں سوئے کہا، ہاں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں مہمانوں سے تمیز سے پیش نہیں آتا۔ شیلا بیگم نے اسے کہا، جس پر مائزہ چونک گئی۔ کیا مطلب؟ مائزہ نے حیرانی سے کو دیکھا کہ تم نے کل حارث سے کتنی بدتمیزی کی، اس نے صرف کافی بنانے کو تھا اور تم دھکا دے کر کمرے کی طرف۔ کیا کوئی ایسے کرتا ہے اپنے مہمانوں کا؟ ہم نے تمہاری یہ کی ہے۔ شبنم غرائی، او پلیز موم، اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ضرورت سے زیادہ فری کوشش کر رہا تھا۔ تربیت کی بات تو آپ مت ہی کریں، جب میری تربیت کا وقت تو آپ اور ڈیڈ تو اپنے کاموں میں مصروف تھے، آپ بھی مجھے توجہ دی ہاں ہے۔ مائزہ نے شیلا بیگم کہا جو حارث کو سرد نظروں سے گھور رہی تھی، بکواس بند کرو، تمہارے تو شکوے شکایتیں ہی ختم ہوتی، ہم تمہیں پلیٹ میں بھی لا کر دیں گے تو تمہاری وہ شکایتیں ایسے گی، بدتمیز لڑکی۔ شیلا بیگم اس پر چلائی، کہنے دیجیے آنٹی، مائزہ کو یہاں آنا پسند نہیں آیا، کوئی بات نہیں، ہوٹل میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ حارث نے مائزہ کے والدین کے اپنی شرافت کا لبادہ اڑ کر کہا، نہیں حارث تم کہیں نہیں جاؤ، ہی رہو گے۔ شیلا بیگم نے حارث کو کہا، مائزہ کو سخت نظروں سے گھور۔ مائزہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی کہ شیلا بیگم نے مائزہ کو پکارا، جی۔ مائزہ نے شیلا بیگم کو دیکھا، حارث کو کچھ چاہیے تو اس کے ساتھ شاپنگ لے جاؤ۔ شیلا بیگم مائزہ کو کہا، جس پر آگ بگولا ہو گئی، کیوں میں اس کے ساتھ کیوں جاؤں؟ کیا یہ کوئی چھوٹا بچہ جو اسے شاپنگ تھی؟
माइज़ा ने हारिस को घूरा। माइज़ा तुम हमेशा इतनी बदतमीज़ी क्यों करती हो? चुप करके हाथ चली जाओ। बेगम के इसरार पर वो के साथ शॉपिंग के लिए मॉल चली। हारिस शॉप रहा था जबकि वो बेसी उसके के मुकम्मल होने कर रही थी, जो कि होने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है इसने अगले साल के कपड़े आज ही लेने हैं। वो ये सब कुछ जान कर रहा है। माइज़ा शॉप पर भी जाना है, हारिस कहकर माइज़ा पकड़ते हुए इस दुकान के अंदर घुस गया। जबकि ये मंजर और नहीं था। जैसे माइज़ा दुकान से निकली, अपने सामने अरहम को देखकर बयान हो गई। मिस माइज़ा यहाँ? माइज़ा को हारिस देखकर कहा, जबकि हारिस अभी माइज़ा का हाथ पकड़े, जिसे देखकर अरहम की आंखों में सुर्खी। जी सर, वो माँ की फ्रेंड के बेटे हैं, इन्हीं के साथ शॉपिंग पर आई थी। और हारिस, ये मेरे सर अरहम हमारे सर हैं। दोनों का तारुफ देते हुए कहा, मतलब कि ममा की फ्रेंड के अलावा भी इनका आपसे कुछ ताल्लुक है। अरहम ने निगाहों से के हाथ को हारिस के हाथ में देखा, जिस पर माइज़ा ने फौरन अपना हाथ छुड़ाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चलो यहाँ से। हारिस का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया। अरहम की निगाहों ने दूर तक उनका किया। लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर बातूनी मंगा रहा था। हंसते हुए कहा, खैरियत है? मेरी याद कैसे आ गई? मुझे लगता है कि आपकी एक फ्रेंड है, तभी आपने मुझे याद किया। हमने तंज करते कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं, एक्चुअली मुझे आपसे एक समझना था। माइज़ा, अच्छा जी, मतलब मैं आपको काम के वक्त आराम से कहा, नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप बात कर रही थी कि अचानक से हारिस उसके रूम में आए। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि नॉक करके ऐसे क्यों आ गए हैं आप? बगैर नॉक किए माइज़ा चिल्लाई। मैंने सोचा आंटी घर पर नहीं है, तुम्हारे पास ही आ जाऊं, तुम तो जल्दी तक नहीं हो, उसने कहका लगाते हुए, जबकि फ़ोन की तरफ अरम उसके खिलाफ की बातें सुन रहा था। हारिस ने माइज़ा को धक्का दी, मेज़ का कोना उसके साथ चिल्लाई। फ़ोन कॉल चल परेशानी से दूसरी तरफ लाया। ज़बरदस्ती दस बाजू को पकड़कर उस पर धक्का दिया। माइज़ा चिल्ला रही, उसकी आहें और सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं। हारिस, क्या कर रहे हो? वो गिड़गिड़ाई, ऐसा मत करो, ये बात तुम आराम से मान जाती तो अच्छा। कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर, मगर तुम हो गया अट रहती। हाथ की तरफ बढ़ने लगा कि माइज़ा ने उसके सर पर मार दिया। वहाँ से भागने लगी कि उसका पकड़ जोर से खींचा, इन पर मुंह के बल गिरी, होंठ फट गया। खींचा ताने में माइज़ा की कमीज़ की आस्तीन भी फट चुकी थी। वो अपने आप को बचाना मुमकिन कोशिश, जैसे ही दोबारा उसके कदम पर चाहा, कमरे में दाखिल हो और जोर से उसके सर पर पीछे किया और उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। और वो अरहम था। फौरन माइज़ा की तरफ पहुंचा और उसकी आस्तीन पर उसे नेट से दुपट्टा निकाल दिया। इंसान दुपट्टा उड़ाकर आस की तरफ बढ़ा, इतने मुगे और लाते मार कि वो बेहोश हो। सर से छोड़ दे, वो इसे जाना चाहिए। अरहम उसे मारे जा रहा था। उसकी इसकत कैसे हुई करने की, मैं इसे मार दूंगा। मैंने अपनी पॉकेट से गाने की। माइज़ा ने फौरन उसका लिया, नहीं प्लीज़ इसे मत मारे। हमने घूर कर माइज़ा जिस पर वो बेबी रो दी, मुझे यहाँ प्लीज है। माइज़ा रोते हुए कही, दिल को कुछ, और वही जख्म से लेकर अपने अपार्टमेंट। अरहम ने हम पट्टी और उसे अपना दिया कि उसके कपड़े बद में थे। अरहम ने हारिस को पुलिस के हवाले कर दिया। माइज़ा, तुम्हें ये सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। अरहम ने माइज़ा को देखते हुए कहा, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, वो दोनों सिर्फ पैसे के पुजारी हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई उनकी बेटी के साथ कैसा सलूक करे, बस उन्हें बदले में पैसे चाहिए। मैं अब उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। माइज़ा ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, मैंने मम्मी को इतनी बार बताना चाहा कि हारिस ठीक नहीं है, मगर उन्हें उनके पैसों के सामने कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपनी बेटी की बात तक को सच नहीं माना। अरहम घुटनों के बल माइज़ा के सामने बैठा, उसका हाथ पकड़कर उम्मीद से उसकी आंखों की तरफ देखा। माइज़ा, क्या तुम इसे शादी करना चाहोगी? अरहम ने मोहब्बत भरे लहजे में माइज़ा से पूछा, मैं एक जालिम के साथ नहीं रह सकती। माइज़ा ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, वॉट, मैं तुम्हें मजलूमों पर जुल्म करने वाला लगता हूँ? अरब ने हैरानी से देखा। हाँ, वो जो मैंने क्लब में देखा था, वो क्या था? अरब ने अपना माथा मसला। माइज़ा, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या चाहती हो। इस चेयरपर्सन का जो कत्ल मैंने किया, क्या आपने उसका भी कत्ल किया था? माइज़ा चीखते हुए बोली, सुनो तो सही, वो अपनी यूनिवर्सिटी की लड़कियों को हरास करता था। न जाने कितनी लड़कियों ने उसकी वजह से खुदकुशी की थी, और एक मेरी फूल जैसी बहन थी। मैंने उसकी मौत पर खुद से वादा किया था कि मैं उसको इंसाफ दिलवाऊंगा। और वो जो क्लब में बंदा था, वो बहुत अमीर और पैसे वाला था, मगर इतना ही ज़्यादा अय्याश, अपने घर में काम करने वाली मासियों का गलत फ़ायदा उठाता, उन्हें मजबूर करता। उनके घर काम करने वाली मासी की बहन मेरे सामने रोई तकलीफ़ से, क्योंकि पुलिस ने उन लोगों की मदद नहीं की थी। ये पैसे वाले असर रसूख वाले लोग थे,
उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस भी उन लोगों की खरीदी हुई होती है, उन्हें लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, हर किसी को ख़रीद सकते हैं, अपने आप को ज़मीनी खुदा समझ बैठते हैं, जबकि हम सबका खुदा तो अल्लाह है। उसने तो हमें इंसाफ़ करने का हुक्म दिया है, तो फिर कैसे ये लोग अपने में से कमतर लोगों को चींटी और कीड़े मकोड़े समझते हैं। मैंने सिर्फ इस लड़के को इंसाफ दिलाने की कोशिश की। अरम की आंखों से आंसू टपक कर उसका चेहरा भगो रहे थे। माइज़ा उसे भी तो हारत से अरम ही ने बचाया था, अगर वो ना था तो जाने क्या हो जाता। लेकिन मैं तो आपको पसंद नहीं थी, फिर क्यों करना चाहते हैं मुझसे शादी? माइज़ा ने कहा, क्योंकि तुम जैसी मुँह फट और बदतमीज़ लड़की ही मुझे झेल सकती है। अरम ने हंसते हुए कहा, एक बार गले पड़ गई ना ये चुड़ैल तो फिर शिकायत मत करिएगा। फ़ाइज़ा ने मुँह बसोरते हुए कहा, मुझे मंजूर है इस चुड़ैल का अपने ऊपर मर मिटना। अरम ने हंसते हुए कहा और अपना हाथ उसके हाथ में रखकर एक उसे हमेशा मजबूत के लिए एक साहिबान मजबूत बनने का वादा साहिबान किया। बनने